friends, so today we will discuss about the salts of the chapter acid, bases and salts of standard 10th. So we will start with salts. Salts क्या होते हैं? These are the ionic compounds. ये आयनिक कंपाउंड्स हैं विच कैरी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. इनके पास दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बट इन इक्वल अमाउंट. जब 5 पॉजिटिव है और 5 ही नेगेटिव है तो एज होल दे विल बी न्यूट्रल. न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज दे कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. सो सॉल्ट जो है एज होल न्यूट्रल होते हैं और ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. क्लियर? सो सॉल्ट इज हैविंग 2 पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Positive part come from base and negative part come from acid. So जो positive part है उसको हम बोलते हैं basic radical और जो negative part है that is called as acid radical. I'll give you example of salt like NaCl. NaCl will dissociate into Na positive and Cl negative, Na positive, Cl negative, one positive, one negative. So as whole it is neutral. This positive part comes from base and this comes from acid. So this is basic radical and this is acidic radical. नेक्स्ट इज सॉल्ट बनते कैसे हैं. एज आई टोल्ड यू दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड कंबाइन विद बेस इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिड एंड बेस, कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज हो रहा है उसके बिहाफ पे सॉल्ट्स जो हैं आर क्लासिफाइड. उसके बेसिस पे सॉल्ट्स को क्लासिफाई किया गया है. लाइक न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. जो न्यूट्रल सॉल्ट है वो कैसे बनते हैं? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब दोनों चीजें ही स्ट्रॉन्ग है, और व्हेन वीक एसिड कंबाइन विद वीक बेस, मतलब दोनों चीजें सेम ही होनी चाहिए, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों ही क्या हो, वीक हो. एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विद वीक बेस, एंड बेसिक सॉल्ट बनेगा व्हेन वीक एसिड कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग बेस. सो दिस इज द classification of acids according to the classification of salts according to the acids and bases which are used to synthesize the salts. So neutral salt, acidic salt and basic salt. I'll give you example of neutral salt, acidic and basic, and how we will check that which salt is having which type of nature. Next is type of salts: neutral salt, acidic salt and basic salt. So here we have the examples of all type of salts. Now see, like NaCl, हमें कैसे पता चलता है कि ये वाला सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है? हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्ट हमें गिवन है उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं. उसके बाद इसके आयंस बना लो. NaCl will dissociate into Na positive and Cl negative, and water will always dissociate into H positive and OH negative. Positive part of this will combine the negative part of water. So here NaOH और यहाँ पे बन जाएगा HCl. So यहाँ पे strong base है और strong acid है. So it is a neutral salt. One more example, CH3CO NH4. तो यहाँ पे भी हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और ये कैसे बन जाएगा? CH3CO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. Here CH3COOH plus NH4OH. Both are weak acid and weak base, ammonium hydroxide and
acetic acid. Both are weak, so acid will that salt will be neutral. Next is acidic salt की अगर हम बात करें, so NH4Cl को when we will dissolve in water, here is the formation of NH4 positive, Cl negative, and water will dissociate into these ions. इसका positive, इसका negative, so NH4 OH plus HCl. So it is strong acid and it is weak base. So it is a acidic salt. Another case, NaHCO3 when we dissolve it in water, तो ये टूट गया Na positive, HCO3 negative, and again it will be dissociate into H positive and OH negative. इसका positive इसके negative के साथ combine कर जाएगा NaOH, and here it will be H2CO3. This is weak acid and this is strong base. Carbonic acid is a weak acid and sodium hydroxide is a strong base. So by this method we will classify the salts. Is it neutral, acidic or basic? Next is we will discuss the different type of salts in this video. अलग अलग तरह के salts को हम discuss करेंगे. आपकी 10th क्लास में 4 to 5 सॉल्ट्स हैं, उनके यूजेस हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, विच इज़ यूज्ड एज ए raw salt or raw material to synthesize the another type of salts. So हमारे पास salt जो है, फर्स्ट सॉल्ट किसकी हम बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की. इसका जो कॉमन नेम है दैट इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड. केमिकल नेम और कॉमन नेम में डिफरेंस देख लो. कॉमन नेम जहां पे हमें एटम्स का नहीं पता चलता विच टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, और केमिकल नेम जहां से हमें टाइप ऑफ एटम्स का पता चलता है. लाइक सोडियम क्लोराइड तो हमें पता है कि फॉर्मूले में सोडियम और क्लोरीन है. कॉमन सॉल्ट में हमें नहीं पता चल रहा कि किस टाइप के एटम्स जो है वो यूज हो रहे हैं. सो इन विच द टाइप ऑफ एटम्स आर नॉट आइडेंटिफाइड दैट आर नोन एज कॉमन नेम, और जिसमें हमें पता चले कि किस तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड एज केमिकल नेम. सो NaCl का कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट है और सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है. NaCl कहाँ से बनता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी. ये सी से बनता है, इसको सी में से निकाला जाता है. इट मीन्स इट इज प्रेजेंट नेचुरली एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर. जब सी वाटर को इवेपोरेट किया जाता है तो लेफ्ट ऑफ जो बचता है दैट इज NaCl. क्लियर. जब NaCl को हम आयोडाइज्ड कर देते हैं, इसमें आयोडीन ऐड कर देते हैं, देन इट इज नोन एज टेबल सॉल्ट विच इज यूज्ड टू ईट. इट इज एडिबल. इसको खाने में यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन द फूड. इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. तो टेबल सॉल्ट क्या है, आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट इज नोन एज टेबल सॉल्ट. सो NaCl जो है उसकी दिस इज अ रॉ सॉल्ट विच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट्स. तो आगे जब हम सॉल्ट्स करेंगे तो हम NaCl को एक रॉ सॉल्ट की तरह यूज करेंगे. और इसके अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं. इसके क्या यूजेस हैं. ये फूड में यूज होता है, उसको टेस्ट देता है. इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. इट इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज द अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट्स. इट इज़ यूज्ड इन लैब में भी यूज होता है. इट इज़ यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री. क्लियर. सो कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. जो NaCl है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसलिए जब रेनी सीजन होता है तो जो नमक होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, ड्यू टू बिकॉज इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. रेनी सीजन में मॉइस्चर ज़्यादा होता है एयर में, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है. NaCl उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है. क्लियर. जब हम NaCl को हीट करते हैं इट गिव क्रैकिंग साउंड ड्यू टू लॉस ऑफ these water molecules.
जब हम NaCl को हीट करते हैं, NaCl के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटीज। जब हम इसको हीट करते हैं तो NaCl क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। किस वजह से? बिकॉज उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सॉल्ट अगर हम बात करें, दैट विल बी अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड की बात करें, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा। It is synthesized with the help of chlor-alkali process. इस प्रोसेस का क्या नाम है जिससे हम NaOH को सिंथेसाइज करते हैं? दैट इज chlor-alkali प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, रिएक्शंस क्या है, या सिंथेसिस का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है? जब हम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन? 4% aqueous solution of NaCl is known as brine solution। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन। जब हम ब्राइन सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, then there will be a synthesis of NaOH, H2 plus Cl2। It means the electrolysis of NaCl, aqueous NaCl is known as chlor-alkali process। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इन 8th स्टैंडर्ड, वी हैव बीकर इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, और उसमें 2 मेटल की रॉड्स होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक होती है नेगेटिवली चार्ज जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और एक होती है पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम एनोड बोलते हैं। एनोड होती है पॉजिटिव और कैथोड होती है नेगेटिव, और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? NaCl को वाटर में हमने डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एट एनोड कौन सी रिएक्शन होगी और इन सॉल्यूशन कौन सी रिएक्शन होगी। अब देखो, हम यहाँ से अगर देखें, NaCl भी, NaCl में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस विच विल बी Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, and water will also be dissociate into H positive and OH negative। तो कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, इट मींस उसके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आएंगी। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिवली चार्ज चीज़ें हैं, एक NaOH है और एक H पॉजिटिव आयन है। इन दोनों में से H पॉजिटिव जो है वो मोर इजीली डिस्चार्ज होगा टूवर्ड्स द कैथोड। तो जब H पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा, इट विल एब्जॉर्ब 1 इलेक्ट्रॉन और टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू H। अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स जा रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और H2 की फॉर्म में आ जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। सेम अगर एनोड की बात करें, एनोड पे कौन जाएगा? Cl नेगेटिव या OH नेगेटिव? तो यहाँ पे Cl नेगेटिव विल डिस्चार्ज टूवर्ड द एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, सो Cl नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू Cl। अगर इस केस में और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अगर 2 क्लोरीन है तो Cl2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स विल come out and these 2 electron will be used here। क्लियर? तो H2 भी बन गया और Cl2 भी बन गया, जो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास। ठीक है जी। सोल्यूशन में अब क्या बचा? हमारे पास 2 टाइप ऑफ आयंस आर स्टिल लेफ्ट, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव विल कंबाइन OH नेगेटिव टू गिव NaOH। तो 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे थे, NaOH, Cl2 एंड H2। सो ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर हेयर। अब हमें NaOH, H2 और Cl2 के यूजेस करने हैं कि ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। NaOH is used in the paper industry, it is used in the soap industry, it is used to synthesize another type of compounds, it is used as a laboratory reagent। हाइड्रोजन का जो मेन यूज़ है, इट इज़ यूज इन द फर्टिलाइजर्स, इट इज़ यूज एज ए रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच compound from the chlor-alkali process is used as a rocket fuel। So hydrogen is used as a
रॉकेट फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन, एंड इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द 4th चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. दैट मीन्स hydrogenation of the vegetable ghee to convert into the vegetable oil. Next is chlorine. Chlorine is used as a bleaching agent. It is used as a disinfectant to kill the germs in the water. It is used to synthesize the another compounds like PVC, CaOCl2, that is known as bleaching powder. तो ऐसे क्लोरीन यूज होता है अलग अलग कंपाउंड्स को बनाने में. इट इज ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भी इसको यूज किया जाता है. ठीक है, सो दैट इज कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा. अब क्वेश्चन है व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज इस प्रोसेस में हमारे पास क्लोरीन भी बन रही है, इसलिए ये वर्ड आया क्लोर, और एल्कली भी बन रहा है. एल्कली का मतलब बेस विच डिजॉल्व्स इन वाटर, दैट इज NaOH. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. नेक्स्ट सॉल्ट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट सॉल्ट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम. इट्स फॉर्मूला इज CaOCl2 and its chemical name is calcium oxychloride. Now how we synthesize this bleaching powder? ये कैसे बनता है, क्या रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? When we pass chlorine gas from the slaked lime, it gives bleaching powder plus water. It gives milky appearance. मिल्की अपीयरेंस आती है इसकी, इस जो कंटेंट की, सॉल्यूशन की, बिकॉज इट कंटेन्स अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इस रिएक्शन से सिंथेसाइज किया जाता है. COH2 में से जब हम क्लोरीन पास करते हैं तब हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है. नाउ ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू decolorize the substance, decolorize the paper, decolorize the clothes. So it is used in the paper industry, it is used in the cloth industry, and it is also used in laundry purposes. जहाँ पे अगर कहीं पे स्टेन लग जाए कपड़े के ऊपर तो वहाँ उसको रिमूव करने के लिए बट वी यूज़ ब्लीचिंग पाउडर. सो इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री पर्पसेस. इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है ब्लीचिंग पाउडर का वो ये आता है, व्हाई इट स्मेल्स लाइक क्लोरीन. When bleaching powder is exposed in air, why it smells like chlorine? Chlorine की स्मेल ये क्यों देता है? Because when it reacts with carbon dioxide present in air, जब ब्लीचिंग पाउडर एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, then it gives calcium chloride, water and chlorine. This chlorine gas which released is known as, is used, it gives the smell of the chlorine when bleaching powder is exposed to air. So this is important question, why bleaching powder smells like chlorine. ठीक है, और बच्चे आंसर ये लिखते हैं कि क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है इस वजह से ये क्लोरीन की स्मेल देता है. नहीं, क्लोरीन यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में है. ठीक है, तो वहाँ जब कोई भी एलिमेंट अपनी कंपाउंड फॉर्म में होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देता है, बट जब वो इन एलिमेंटल स्टेट होता है तब उसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती हैं. तो यहाँ पे वो कंपाउंड फॉर्म में है, तब इसलिए वो क्लोरीन की स्मेल नहीं देता. बट जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है तभी वो क्लोरीन की स्मेल देता है. क्लियर? एंड नेक्स्ट सॉल्ट विल बी प्लास्टर ऑफ पेरिस. नेक्स्ट सॉल्ट की अगर हम बात करें तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस. POP, plaster of Paris. Its formula is CaSO4, half molecule of water, and its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. हेमी का वर्ड, हेमी वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है. हेमीहाइड्रेट.
प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों क्या कहा जाता है? बिकॉज इट फर्स्टली इन्वेंटेड इन द पेरिस। और पीओपी बनता कहाँ से है? इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से पीओपी बनता है। व्हेन वी हीट जिप्सम एट 373 केल्विन देन पीओपी इज ऑब्टेन्ड। अब जिप्सम हमारे पास क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तब बनता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड these water molecules will be released out. क्लियर? अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मोर देन 373 केल्विन हीट करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनता, तब हमारे पास बनता है डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर which don't have the properties of molding। यहाँ पे इसके पास मोल्डिंग की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, जबकि पीओपी के पास मोल्डिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। इट मीन्स वी कैन चेंज इट्स शेप अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है पीओपी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस आ जाते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीओपी? तो पीओपी के यूजेस क्या है? इट इज़ यूज टू डेकोरेट द सीलिंग्स, सीलिंग्स की डेकोरेशन के लिए पीओपी करवाते हैं लोग घरों में। इट इज़ यूज टू मेक द सर्फेसेस स्मूथ। पेंट करवाने से पहले लोग जो हैं वो दीवारों को स्मूथ करवाते हैं ताकि पेंट इजीली हो जाए। तो वहाँ उनको स्मूथ करने के लिए, वॉल्स को स्मूथ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पीओपी ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक द स्टैचूज, स्टैचूज बनाने के लिए पीओपी को यूज़ करते हैं। और यूज टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए डॉक्टर जो है वो जब प्लास्टर लगाते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? पीओपी का ही बना होता है। अब एक क्वेश्चन और है, व्हाई पीओपी इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स? एयर टाइट कंटेनर्स में हम क्यों इसको स्टोर करते हैं? व्हाई? बिकॉज पीओपी जो है वो एयर में से मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में, विच इज अगेन अ हार्ड मास विच डोंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग। ठीक है, तो ये जो हार्ड मास है इसको हम दोबारा से पीओपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से पीओपी खराब हो जाएगी। तो पीओपी खराब ना हो इसलिए हम इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। और ड्राई एरिया में स्टोर करना चाहिए, जहाँ पे गीली जगह है वहाँ पे पीओपी को नहीं रखना चाहिए। अगेन इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, वहाँ से पानी लेगा तो वो हार्ड बन जाएगा और अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देगा? लूज कर देगा। सो इन ईच एंड एवरी सॉल्ट, फर्स्ट हैज इट्स प्रिपरेशन, इट्स सिंथेसिस रिएक्शन, सेकेंड इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये वाटर में सॉल्युबल है नहीं है, और थर्ड जो है इट्स यूजेस, एंड फोर्थ जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं हर सॉल्ट की, वो करनी है। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। इफ यू लाइक इट, डू शेयर, like and subscribe the channel. Thank you.